echo of his call. God bless you this morning. इस सुबह के समय परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। In this world, we need always some kind of guidance to have a good walk. इस संसार में हमें हमेशा कोई एक सलाह की जरूर है सही रास्ते पर चलने के लिए। Worldly people have their own worldly system. जो संसार के लोग हैं वो उनके संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं। But for godly people like you and me, there is a system of spiritual guidance. लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए परमेश्वर के रीति रिवाज है। Once King David was undergoing a lot of distress in his life. एक बार दाऊद राजा अपने जीवन में बहुत सारे तकलीफों से होकर गुजर रहा था। He was not able to overcome all the problems of his life through his might and power. और वो अपने जीवन में उन सारी बातों से अपनी दिमाग से वो नहीं बाहर आ पा रहा था। So he prays like this. और इसलिए वो इस तरह प्रार्थना करता है। Psalm 119 verse 169. भजन संहिता 119 का 169 वचन। Let my cry come near before you, O Lord. मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे ओ प्रभु। Give me understanding according to your word. तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। So when we pass through problems, when we cry unto the Lord, He gives us some kind of understanding. जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और अपने मुसीबत से होकर गुजरते हैं ऐसे समय में, तब वो हमें समझ देते हैं। Understanding is something inside of life. समझ एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के अंदर में होती है। When we have proper understanding about God, we are able to get heavenly revelation. जब हम परमेश्वर के बारे में सही समझ रखते हैं तब हम स्वर्गीय प्रकटीकरण हमें मिलता है। Understanding God and revelation from God are just like the train track. There are two tracks are available in the train way. यह ऐसी बात है जैसे परमेश्वर की समझ और स्वर्गीय प्रकटीकरण है वो एक रेल के दो पटरी के समान है। So they were both work together. दोनों एक ही साथ काम करते हैं। Accordingly, we should have our understanding with the Lord and the revelation from God should go together. और इसी तरह से हमारे जीवन में ये दोनों काम करना चाहिए, वो है समझ और स्वर्गीय प्रकटीकरण। The revelation of God is strengthened or approved by the word of God. और जो स्वर्गीय प्रकटीकरण है वो परमेश्वर के द्वारा उसके वचन के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। Beyond or away from God's word, there should not be any revelation. और परमेश्वर के वचन के बिना और परमेश्वर के वचन के बाहर कोई भी प्रकटीकरण नहीं है। If someone comes and say that God revealed this, अगर कोई कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ये बताया है, you should examine it with the understanding of God's word. और तब आप उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके समझ के द्वारा समझे। Proverbs chapter 21:30 says, नीति वचन उसका 21 अध्याय कहता है, there is no wisdom nor understanding nor counsel against the Lord. परमेश्वर के प्रमाण के विरुद्ध या परमेश्वर के समझ के बाहर कोई भी समझ और कोई भी बात नहीं है। It means there is no wisdom or counsel or understanding against the word of God. परमेश्वर के वचन के अलावा या परमेश्वर के वचन के बाहर कोई भी समझ या कोई भी मार्गदर्शन नहीं है। So in order to achieve great things through spiritual guidance, इसलिए परमेश्वर के द्वारा बड़ी बातों को उनकी सलाह के द्वारा पाने के लिए you should take a decision आपको एक निर्णय लेना होगा। to read the Bible through your mouth. आपको परमेश्वर के वचन को मुंह खोलकर पढ़ना होगा। Memorize the word by heart. और दिल से उसको याद करना है। Meditate the word of God. और परमेश्वर के वचन को मनन करना And है। walk according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना Then है। only you will get revelation. और तभी आप परमेश्वर की ओर से प्रकटीकरण। Revelation will not be given to the people those who are not reading the Bible.
और प्रगटीकरण या परमेश्वर के द्वारा जो बात है वो उन लोगों को नहीं मिलती है जो परमेश्वर के Revelation वचन cannot be expected by the people, those who are not memorizing the word of God. जो परमेश्वर के वचन को याद नहीं करते उन लोगों को प्रगटीकरण नहीं मिलता। Revelation will not be true in the lives of the people, those who are not meditating the word of God. और परमेश्वर के वचन को जो मनन नहीं करते उनके जीवन में वो प्रगटीकरण सत्य नहीं होगा। Also, finally, revelation will not work for the people, those who are not walking according to the word of God. और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते उनके जीवन में भी ये काम नहीं करते। Revelation will not be given to the sinners. और जो पापी है उनको परमेश्वर अपनी समझ नहीं देता। This morning I am going to pray for you. आज इस सुबह के समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता The हूँ। revelation from God परमेश्वर की ओर से प्रकटीकरण and understanding of the word of God और परमेश्वर के वचन की समझ are very much essential in your life. और आपके जीवन में ये दोनों बहुत ही जरूरी है। When you read the Bible and walk according to it, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते you हैं, will have a great understanding about God. आपको परमेश्वर के बारे में एक महान समझ होगी। Then only you will be able to hear the voice of God. और तभी आप परमेश्वर के आवाज को सुन पाएंगे। When you hear the voice of God, you will be blessed. और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे आप आशीर्वादित He will होंगे। guide you in the proper way. और वो आपको सही रास्ते पर अगुवाई You करेंगे। will surely know what to do and not to do. और आपको ये समझ आएगी कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। That can be called as spiritual wisdom. और वो कहते हैं आत्मिक समझ। I want to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for these wonderful people. कृपालु प्रभु इन अच्छे लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद I ask करते you हैं। to put your hand upon them. प्रभु आपके हाथों को उनके ऊपर रखें। Some of them are not able to understand what's your plan in their life. प्रभु कई लोग ये समझ नहीं सकते हैं कि आपका जो प्लान है वो उनके जीवन में क्या है। In the issues of their job, और वो प्रभु उनके कामों में ऐसा सोचते हैं। in the issues of their family life, और उनके पारिवारिक जीवन में प्रभु, in the issues of their education, और उनके शिक्षण के समय में, in the issues of their marriage, और उनके प्रभु जी जीवन के हर Lord, तरह they are not able to understand what to do. क्या करना है उसकी समझ उनको नहीं Lord, है। I ask you to bless them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशीर्वादित Let them करें। enjoy the understanding about you, प्रभु आपकी समझ है उसको वो समझ कर आशीर्वादित हो and by सके। that way let them enjoy the revelation from you. और इस तरह प्रभु आपकी ओर से वो जो समझ है या प्रकटीकरण है उसका अनुभव कर Meet सकें। all their needs right now. प्रभु इसी समय उनकी सारी जरूरतों को आप पूरी If they करें। are sick, Lord, I ask you to heal them. प्रभु अगर वो दुखी है तो आप उन्हें चंगाई If they दीजिए। have a financial need, Lord, I ask you to meet it. और अगर वो आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो प्रभु आप उनकी जरूरतों को पूरी करें And take care of them. और उनकी प्रभु In जी आप Jesus' ख्याल name we रखें। pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। दानिएल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे